Now let's start design of tension member. So now let's start. So design of tension member. So now here how to design. So right here. See that. So the following procedure may be followed in the design of an axially loaded tension member. Okay, so ये procedure जो follow की जाएंगी. The net area required to carry the design load P is obtained by equation P equal to sigma AT A net. Okay, so now here P equal to sigma AT into A net. Okay, so here in question it has been given to design a tension member for suppose that K load equal to 200 kilonewton and 500 kilonewton. So you have P equal to 500 newton and 200 newton. Sigma AT you have already you have allowable, that is the tension stress, that is 150 newton per mm square, are given in the Fy. Based on the Fy, that is the Fy equal to 0.6. So here sigma AT equal to given 0.6 Fy. Okay, so it can be say use mild steel or use HYSD bar, so it can be given HYSD. So generally Fy equal to 250 for mild steel, Fy equal to 250. So sigma AT equal to 0.6 multiplied by 250, so it's ultimately 150. So now you are going to find the required A net. So A net equal to P upon sigma AT. P has been given and sigma AT you can obtain from equation, if not assume. Okay, so in your question it has been written assume suitable data if not available. यदि data available नहीं है, so that you can assume that. So now next says that the net area calculated thus is increased by 25% to 40% to compute the gross cross sectional area. Actually what happens now, आपको A net मिल गया. अब A net पे क्या करेगा, आपको करेक्शन करने के लिए होल करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो उसकी एरिया है उसको 25% टू 40% इंक्रीज करते हो. नाउ सो इसके बाद क्या करते हैं, नाउ चूज IS हैंडबुक नंबर 1 सुटेबल सेक्शन प्रोवाइडिंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मैचिंग विथ कंप्यूटेड ग्रॉस सेक्शनल एरिया एज सेलेक्टेड. ओके, सो नाउ हियर मैंने पिछली बार आपको एक टेबल दिखाया था, उस टेबल से जैसा भी गिवन होगा, यदि एंगल सेक्शन करना है, चैनल सेक्शन है, so now we are going to find out that value. So here suppose that, so this is your chart in your book that is has been given, which section you are going to choose that. Suppose that this is your I section. So this is your I section. Suppose that now here see that. सो हियर आपको क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा सेक्शनल एरिया. ओके, सो आप जब भी सेक्शनल एरिया लोगे तो उससे बड़ा ही लोगे, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा छोटा नहीं लोगे, थोड़ा सा बड़ा लोगे. सपोज दैट आपको 18 आया तो ये 15.12 और 18.08 इसके आसपास कोई और है, ये है 16.28, वो भी छोटा है. 18 से बड़ा कुछ और दिख नहीं रहा है, 21 सीधे आ गया. सो नाउ यू कैन चूज हियर ISLB 150. सो इसके लिए आप प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस सेक्शन और फ्रॉम टेबल यू आर गोइंग टू यूज दैट इज RXX RYY, जैसा आपको बताया गया है, IXX IYY RXX RYY ZXX ZYY R1 R2. ठीक है, सो आपको जनरली यू हैव मीन विद द IXX IYY RXX RYY. ओके, सो हियर एवरीथिंग हैज बीन गिवन हियर, what is the RXX, what is the IXX, everything has been given here. सो नाउ फॉर ओके एंगल सेक्शन भी होगा, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है. सो नाउ फॉर जिसमें बता दिया इससे कि आप कैसे भी आप आपकी बुक में गिवन है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो. क्या कैलकुलेट करोगे कि आपको जो ए नेट है, ये जो आपका ए नेट है वो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, उसको 30 to 40 25 to 40% जनरली आप निकल यूज करना. हियर आपको क्या करना है, 40% तक जाना है, यू हैव टू गो अप टू 40%. ओके, सो मैक्सिमम तक इंक्रीज कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको कनेक्शन के टाइम भी आपका सेक्शन फेल्योर ना हो. और इसके बाद आपने चूज कर एरिया मिल गई, अब आप उस एरिया को आप सेक्शन से IS हैंडबुक से आप निकाल के फाइंड कर लेना कि हमें ये सेक्शन जरूरत है. नाउ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक द कनेक्शन इज कैलकुलेटेड. ओके, सो बेस्ड ऑन योर आपने सेक्शन चूज कर लिया, सो सेक्शन से थिकनेस मिल जाएगा, और थिकनेस से क्या मिलेगा आपको, बेस्ड ऑन द Unwin's formula you can find the phi equal to 6.01 under root t.
6.01 अंडर रूट 2t से आपको क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा. सो नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड. So these are arranged in a suitable pattern and the net area of the section is provided calculated. This should be more than the net area calculated in step 1. Okay. So now suppose that यदि 500 किलो न्यूटन का आपने लोड निकाला, suppose that हमने क्या किया है, यदि 500 किलो न्यूटन की लोड निकाल रहे हैं तो सिग्मा 80 मिला. तो सिग्मा 80 को हमने 25 आपको सिग्मा 80 को नाउ इंक्रीज बाय 40%. तो 1.4 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 40% हो गया. अब जो एरिया आएगा उसको हम IS हैंडबुक से सपोज दैट एंगल सेक्शन चूज करना है, चैनल सेक्शन चूज करना है, जो भी सेक्शन चूज करना है चूज करें और उसको सिलेक्ट कर लें. सपोज दैट हमने क्या किया, ISA 150 × 100 × 12 हमने ये सेक्शन चूज करें. लेट्स हमने एज्यूम कर लिया कि हमने जो भी एरिया आया उस पर हमने ये चूज किया. तो अभी टी मिल गया, ये लेग 1 मिल गया, ये लेग 2 मिल गया, ये लॉन्ग लेग, ये शॉर्ट लेग, ये टी. So now here we are going to find the phi equal to 6.01 under root t. Okay, so हमें t मिल गया, अब phi मिल गया, so phi से हमें d मिल जाएगा, that is the grass dia. So grass dia मिल जाएगा. अब इसके बाद क्या करना है, now we are going to find the rivet value. We are going to find the rivet value. So rivet value in shear and bear, in shear and in bear. Already all these things are discussed, so now I'm not going to discuss all these things here. So now if you're going to find the rivet value, so let's rivet value equal to 80. Let's rivet value equal to 80. Okay, kilonewton. So now here number of rivet required, number of rivet required equal to total load upon rivet value. Total load upon rivet value. So total load, that is the 500 upon rivet value 80. So 8648, so 8 point something आएगा. So let's 7 rivet. Okay, 7 rivet. So now here you can choose the pattern, no matter it can be flat plate, it can be angle section, it can be channel section, कुछ भी हो सकता है. सो आप जो भी पैटर्न अलाउ करें आप बना दें. सपोज दैट आपने इसको ये किया है, जैसे प्लेट से 7 प्लेट को 7 रिविट को ऐड कर रही है. सो नाउ हियर 1 2 3 4 5 6 7. सो नाउ जो भी पैटर्न जो भी आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो अब आपको ये देखना है कि किसी भी सेक्शन पे, सपोज डेट इस सेक्शन पे, या फिर आपने सपोज डेट आपने डबल लगा दिया, नाउ आपने क्या किया, डबल लगा दिया, या फिर डायमंड लगा दिया. सपोज आपने प्लेट की डिज़ाइन की और डायमंड लगा दिया, ठीक है. तो किसी भी प्लेट किसी भी सेक्शन पे हियर या हियर जो नेट सेक्शन है यहाँ पे, हियर नेट सेक्शन ऑफ दिस जो आपने रिविट लगाया है उसका नेट सेक्शन ए नेट से कम नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी हियर नेट सेक्शन शुड नॉट लेस देन ए नेट, क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा 80 यदि आप कम हो जाएगा तो आप वहीं पे फेलियर हो जाएगा. सो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी सेक्शन पे आएगा, यदि इस सेक्शन पे हम कर रहे हैं तो ये जो बचा हुआ ये नेट है, जो नेट है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. ए नेट से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या होगा यहाँ पे एटलीस्ट सेफ हो जाए. सो नाउ हियर अगेन, okay, so sir, third one is the number of rivet required to make the connection is calculated. Thus they are arranged in suitable pattern and the net area of section provided is calculated. This should be more than the net area calculated. Okay, जो a net है उससे कम कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो मिनिमम है, उससे यदि कम हो गया तो मतलब सेक्शन वहीं पे फेल हो जाएगा. Now the slenderness ratio of the member is checked as per IS specification. Okay, so now let's go for the slenderness ratio. What is the slenderness ratio? Okay, so this is the very important. Okay, and this is for your practice, that is for your competition examinations. Always remember, this is for your competition examination. These questions always asked, sometimes asked.
So now here, what is the slenderness ratio? Perhaps you already have, everyone know what is the slenderness ratio. The slenderness ratio of a tension member is the ratio of unsupported length L to its least radius of gyration. Theoretically, there is no limit on slenderness ratio of tension member since stability is little conserved. ये टेंशन मेंबर क्या सिलेंडरनेस रेशियो कहा गया है, दिस इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ टू लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आर एक्स एक्स आर आर वाई वाई विच एवर इज लेस। जो आपने आर एक्स एक्स और आर वाई निकाला है वहाँ से इसमें जो भी कम है उसको हो जाएगा। ये थ्योरेटिकली यदि हम थ्योरेटिकल के रूप से बात करें तो चूँकि अब हम टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं, तो यदि कितना बड़ा भी टेंशन मेंबर होगा तो यदि हम उस पर टेंशन लगाएंगे तो सब वो दोनों मेंबर एक ही साथ काम करेगा। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन यदि हम इस पर लगाए, यदि दो मेंबर हैं तो क्या होगा, ये इट विल बकल लाइक दैट। यदि इन केस इसका बेस्ट एग्जांपल है, यदि हम दो ब्लेड लेते हैं, इन दोनों के बीच में यदि ब्लेड रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा, आप सीधे देखोगे ब्लेड एक इधर भाग रहा है, दूसरा नीचे बकल कर रहा है। सो थ्योरेटिकली वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, बट फॉर सेफ्टी पर्पज but since stability is little concern, however this may be subjected to load reversal during transportation, shipping, erection, etc. Okay, what is the, it says the one more term, that is the reversal of load. मीन्स जहाँ पे लोड टेंशन का आ रहा है वहाँ पे कंप्रेशन भी लग सकता है। जब हम इरेक्शन करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, वहाँ पे इट मे बी पॉसिबल, संभव है कि वहाँ पे क्या हो जाए, वो कंप्रेशन टेंशन की जगह कंप्रेशन लग जाए। सो क्या होगा, वो दोनों अलग अलग काम करने लगेगा। वो दोनों, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम किसी ब्लेड पे लोड लगाते हैं तो क्या कर रहा है, एक ब्लेड दूसरी तरफ भागता है, दूसरा ब्लेड दूसरी तरफ भागता है, दोनों एक साथ नहीं काम करता है, यूनिक वे से काम नहीं करता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो उसके चलते हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी इसकी सिलेंडरनेस रेशियो देनी पड़ती है। So now here, in order to provide adequate rigidity to prevent the undesirable lateral movement and excessive vibration, design specification usually contain a limit slenderness ratio for tension member IS 800 1984 limited. Okay, so here as per IS 800 1984, the slenderness ratio has been given. So first one, a tension member in which a reversal of direct stress due to load other than wind or seismic force occur. Okay, a tension member जहाँ पे रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड हो सकता है अदर देन विंड और सिस्मिक लोड और विंड लोड को छोड़ के दूसरे किसी भी लोड से यदि रिवर्सल ऑफ लोड हो सकता है, रिवर्सल लोड का रिवर्सल हो सकता है, जैसे बताया गया कि जो मेंबर पे टेंशन आ रहा है वो ड्यू टू एनी रीजन वो कंप्रेशन में हो जाए, जो कंप्रेशन में आ रहा है वो टेंशन में हो जाए, तो उसके लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो इज द 180. रिमेंबर दिस इज द 180. सो नाउ नेक्स्ट वन, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्स. रिमेंबर, सो हियर विंड और अर्थक्वेक फोर्स दोनों आया है. और नाउ हियर रिमेंबर बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई. ओके, टाइप इन रूफ ट्रस. ओके, अभी रूफ ट्रस आगे पढ़ोगे. सो यदि टाई की तरफ कार्य कर रहा है और ब्रेसिंग सिस्टम भी है बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल, और इसमें विंड लोड और अर्थक्वेक लोड सब कुछ पॉसिबल है, सो उसके लिए जो मैक्सिमम है वो सिलेंडरनेस रेशियो इक्वल टू 350. सो नाउ टेंशन मेंबर, फॉर टेंशन मेंबर दैट इज अदर देन प्री टेंशन मेंबर दैट इज द 400. सो हियर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, 180 एंड 350. रिमेंबर, फॉर टाई 350, जहाँ पे टाई आ जाना वहाँ पे 350 कर देना, और जहाँ पे दैट इज द अदर दैन विंड एंड सिस्मिक करें वहाँ पे 180. सो ऑल दिस थिंग्स क्लियर. सो नाउ लेट्स हियर. सो आपको ये है नहीं, टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट है नहीं नाउ जनरली. सो नाउ हियर जस्ट वेट. नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट हियर. सो रिविट पिच. सो नाउ आपने क्या किया, कनेक्शन डिजाइन किया. जैसे मैंने बताया था कि यदि आप 7 रिविट दे रहे हो, हियर आपने 7 सपोर्टेड, आपने 7 रिविट दिया, आप कहाँ गए 7 रिविट्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एट दिस, आपने कनेक्शन किया. सो नाउ हियर डिजाइन मतलब आपको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, कनेक्शन की डिजाइन करनी पड़ेगी, टेंशन की डिजाइन करनी पड़ेगी. सो जब आपने 7 रिविट दिया तो 7 रिविट को क्या करेंगे आप, स्पेसिफिक पिच एज डिस्टेंस होगा, पिच डिस्टेंस होगा, गेज होगा, और नाउ that is the minimum pitch and maximum pitch. So all these things are as per your connection.
जब आप रिविट की कनेक्शन कर रहे हो, वेल्डिंग की कनेक्शन कर रहे हो, तो वेल्डिंग का वेल्डिंग का थ्रू करेगा और रिविट का थ्रू करेगा। ठीक है, सो आपका जो भी है, सो लेट्स अगेन रिवाइज दैट। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दिस थिंग्स। सो हियर रिविट पिच, सो इन मिनिमम पिच here it says that is the nominal dia should not be less than the minimum dia should not be less than that is the minimum pitch should not be less than 2.55. Okay, so now maximum pitch I already discussed. Okay, so this is the 32T or 300 mm, 32T or 300 mm, that is the T is the thickness of thinner plate. Okay, so now here for tension member that is the 16T or 200 mm, जो भी लेस हो, सो आप क्या कर रहे हो, टेंशन मेंबर के लिए कर रहे हो, तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, सो मैक्सिमम विच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16T or 200 mm. Okay, so now tack rivet already discussed. Tack rivet are not used for carry stress, load carry के लिए नहीं होता है. Okay, so now here design of steps, that is design steps. Now अब क्या करेंगे, सो हमने क्या किया, डिजाइन कनेक्शन की डिजाइन कर दिया. अब नाउ हियर उपांग पर आने वाले अधिकतम बंध के साथ खंड का चयन एवं सुरक्षित के लिए जांच, अन्य उपांग के साथ जोड़ का विकल्प. ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि पहले क्या करेंगे, इससे ए निकालेंगे, ए नेट निकालेंगे, ए नेट से उसको 40% तक इंक्रीज करेंगे और 4 इंक्रीज के बाद हम क्या करेंगे, अपने IS हैंडबुक से अपना सेक्शन चूज कर लेंगे. ओके, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएगा उसमें. Now here, so same something, everything is same. Okay, let's solve a question. So here question example number 5.12 says 140 किलो न्यूटन टेंशन फोर्स के लिए एक फ्लैट प्लेट का डिजाइन कीजिए और 80 mm रिवेटों का प्रयोग कीजिए अनुगेय प्रतिबल FT, FS एंड FB. ओके, सो समटाइम्स कुछ भी नहीं गिवन होगा, कुछ भी नहीं गिवन होगा. नाउ इट हैज़ बीन गिवन कि दैट इज द डिजाइन फॉर फ्लैट मेंबर. ओके, डिजाइन फॉर ए फ्लैट प्लेट. ओके, डिजाइन ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ 200 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन, 600 किलो न्यूटन, दैट्स इट. ओके, सो नाउ हियर या फिर थिकनेस ऑफ प्लेट बता देगा. सो बेस्ड ऑन दैट थिकनेस ऑफ प्लेट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग. ओके, सो यदि कुछ भी नहीं, चूँकि यहाँ पे दिया थिकनेस ऑफ प्लेट नहीं दिया है, तो इसने क्या दिया है, रिवेट का दे दिया है, 18 mm रिवेट का यूज कीजिए. सो नाउ हियर अब आप क्या करोगे, जब 18 mm रिवेट का, जो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 5.12, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिजाइन ए फ्लैट प्लेट, design a flat plate of okay for 300 kilonewton. Okay, and rivet used equal to 26 mm, 5, that is 5 equal to 26 mm. So now here आपको 300 किलो न्यूटन के लिए एक फ्लैट की डिज़ाइन करनी है और रिविट की वैल्यू क्या है. सो FS, FB, FT you have to remember. Okay, so now next here we are going to design. So first what 300 kilo Newton 5 equal to 26. So now here solution first we are going to calculate here d equal to 5 plus 2.00, so 26 plus 2 mm, that is the 28 mm. So now here as already discussed, so now अभी हमें क्या निकालना है, डिजाइन ए फ्लैट प्लेट फॉर 300 किलो न्यूटन. सो अभी आप क्या निकालोगे, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया इन इट. सो P इक्वल टू sigma AT into A net. So A net equal to P upon sigma AT. So here let's, चूँकि नहीं गया है, so let's sigma AT, यहाँ पे जब सोल्यूशन लिखो यहाँ पे आप मेज्यूम कर लो, let's sigma AT equal to 150, sigma S equal to 100 and sigma B equal to 300. Okay, sigma AT equal to 150 Newton per mm square.
So P equal to 500 into 10 power 3 upon 150. So you are going to find 500 into 10 power 3 by 150. So this is your 333.33 mm square. So now you are going to find a plate, फ्लैट प्लेट, कैसे भी प्लेट ले लो जिसका एरिया इतना. नाउ फॉर कनेक्शन इंक्रीज बाय, नो मैटर वी आर गोइंग टू इंक्रीज 30 to 50% जरूर इंक्रीज करना, जिससे आपको दोबारा आपको, यदि आप इंक्रीज नहीं करोगे तो आपको दोबारा आपको डिजाइन करना पड़ेगा यदि सेक्शन फेल हो गया तो. इंक्रीज बाय लेट्स 40%. ओके, so multiplied by 1.4, so that is the 466. So a net, a gross equal to 4666.66. okay, so यदि हम 500 चौड़ी ले लें 600, ओके, सो यदि हम 600 चौड़ी ले लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ओके, तो 600 चौड़ी ले लें और so now here t, so okay, so here now we are going to find the value of your t. So for bearing, so now we are going to find the rivet value. So here pi by 4 into d square into fs. Okay, so 3.14 into d, that is the 28 square upon 4 into 100. So 3.14 into 28 square into 100 by 4. So you are going to find the 3.14 सही है, that is the 61 kilonewton, that is the 61.54 है. so let's 61 kilonewton, no matter थोड़ा सा हम ले लेंगे इसको थोड़ा सा कम, जिससे हमारा ज़्यादा हुआ है. so now bearing, so d into t into fb. so t is unknown, so here t is unknown, d is given, fb is given. so for maximum, so write for maximum strength, so you can write the shear equal to bearing, shearing strength equal to bearing strength. so shearing strength, that is the 61 kilonewton, 61 into 10 power 3 equal to t, that is 28 into t into fb, that is fb equal to 300 as already assumed. so 61 into 10 power 3, 61 into 10 power 3 by 28 into 300. ओके, सो यदि आप ब्रैकेट यूज करके करोगे तो पॉसिबल है, वरना संभव नहीं है. सो ये t इक्वल टू 7.26, यदि 7.26 रहे तो हमारा काम हो जाएगा. सो लेट्स इंक्रीज बाय 10 mm. सो लेट्स t इक्वल टू 10 mm. so let's t equal to 10 mm. so now here b, width of the plate, that is the b into t, that is the a equal to क्या होता है b into t. so a हमें कितना है 466 और 46 या 7 कर सकते हैं, that is the 466.66 था. so let's 4667 point something. okay, so 466 equal to b into 10. so b equal to कितना हो जाएगा 466, b equal to कितना हो जाएगा 466.7. so let's इसे सीधा कर देते हैं, 500 सीधा कर देते हैं, that is the 500.
mm। सो हमें मिल गया एक प्लेट। सो हियर विड्थ ऑफ द प्लेट width of plate 500 at t, thickness of plate equal to 10 mm. Okay, so now here number of rivets equal to here force, कितना फोर्स आ रहा है, दैट इज द फोर्स इक्वल टू हाउ मच, डिजाइन इफेक्ट फॉर 300 किलोमीटर, force upon rivet value, force that is a 300 into 10 power 3 upon 61. So 300 into 10 power 3 by 61, so it's 4.91. Let's 5 rivets. Okay, so you have to arrange a rivet 5 rivets. Okay, सो 500 विड्थ है, सो 5 आपको 5 रिविट करना है अरेंज। सो आप कैसे भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो नाउ हियर लेट्स हियर 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 हियर। ओके, सो थोड़ा सा 10 मिनट, हियर 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 एंड हियर। सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अगेन द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, उस क्रिटिकल सेक्शन को इसलिए निकालते हैं। और नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द एज डिस्टेंस, मिनिमम पिच एंड द मैक्सिमम पिच। ओके, सो नाउ हियर सो क्रिटिकल सेक्शन क्या हो रहा है, पहले एक सेक्शन पे चेक करते हैं, फिर सेकेंड सेक्शन पे। सो बी इक्वल टू दैट इज द 500 माइनस बी दैट इज द नेट विड्थ at section 1. So here 500 minus 28, so this is your 27472. okay, so यदि multiplied by, so a net करते हैं, a net find करते हैं, 472 multiplied by 10 that is the 4720. so that is the greater than how much, कितना आया था ए नेट, हमारा ए नेट आया था 333, दैट इज द ग्रेटर दैन द ए रिक्वायर्ड और हियर ए नेट मत करो, अब इसे ए रिक्वायर्ड कर दो तो बेटर हो जाएगा। ए रिक्वायर्ड मीन्स हमें ए रिक्वायर्ड चाहिए कितना, कम से कम हमें 3333.33 चाहिए रिक्वायर्ड। सो नाउ एज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि how to calculate at the different section. Okay, so now at this section पे क्या करेगा, आप कैलकुलेट करेगा और ये रिविट वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो नाउ हियर एट सेक्शन सेकेंड रिविट। सो आप कितना चूज करो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या होगा, 500 माइनस 2 इंटू 56, 500 माइनस 2 इंटू 28, सो 56 हो गया। सो 56,444 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज तभी ग्रेटर है, यदि हम एक रिविट वैल्यू निकाल दें, लगा देंगे तो भी इंक्रीज करेगा। okay, so now that is again greater than the a required, so again now here we are going to define the pitch. So define the pitch. So here minimum pitch, so edge distance is based on your table, you can calculate the edge distance. So minimum pitch equal to, that should not be less than 2.55, minimum pitch should not be less than 2.55, so 2.5 into 26, 2.5 into 26, so 65 mm से कम नहीं होना चाहिए। और सो मैक्सिमम पिच दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन
16T are 300 mm. 16T are, that is okay, 16T are 200 mm. That is the 200 mm. So 16 into T, 16 into 10, that is the 160 or 200 mm, whichever is less. इनमें से जो भी कम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, whichever is less. सो हम पिच किसके किसके बीच में दे सकते हैं, पिच 65. सो now we can provide the pitch. Now we can provide pitch between 65 mm and 160 mm. So let's see, we can choose 150 mm. ओके, सो यदि 150 रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं. एज डिस्टेंस यदि 40 रख लें तो फिलहाल तो विड्थ बहुत ज़्यादा है, 500 है. सो यदि हम रखें, सो लेट्स सी डिस्टेंस इज द 150, और यदि 40 भी रखें तो कोई एज डिस्टेंस कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टोटल दिस इज द 500. ओके, so now here you can define it, that is the width equal to 500 mm, t equal to 10 mm. So now here pitch to that is the rivet to rivet, center to center line distance equal to 150 mm. Now here 25 5 number, 26 5 number, that is your overall designing of your tension member.